and national sentiments among his kinsmen was also formidable. He said that Indians would continue to suffer in this present state, so long as people did not give up backward notions, superstitions, inaction, and laziness. Dayananda knew that we had a certain backward mindset. So he posed certain searching questions in front of his countrymen, such as, why do you feel inferior to others? Why are you ashamed of calling yourself Indians? Why isn't there any vestige of national pride left in you? Why cannot you walk with your head held erect and high? Some of these questions are applicable even today, my friends, and that is why it shows the kind of insight possessed by that man even during those days. Thus, in order to summarize his vision, what it would state was like, all Indians are educated. Social evils such as dowry, untouchability, sati, etc. have been abolished. The Vedas are considered to be the only true source of knowledge, and everyone is in pursuit of dispelling ignorance by gaining mastery over the Vedas. A just and noble body runs our country. Wise men frame our policies, and Aryavarta as a whole makes progress without relying upon any external powers. Swami also said that progress in science and technology. Know as much as possible. But please do not forget to keep your feet firmly on the ground that is formed from the principles derived of the Vedas. Swami was also a brisk advocate of the principle of Swadeshi. To cite his point, he gave the examples of the Britishers themselves. Now, whenever the Britishers moved around, they wore cloth made in their own country, and that is why they were progressing. Indians had to bring about progress by themselves without relying upon external powers. Thus, in order to summarize what his vision means to us, the youth of the country, I would like to cite the words of Sri Aurobindo. Among the great Indian leaders during his times, one man stands about in solitary distinctness, one unique in his own time, as he is unique in his own work. I do not understand what lay in his mind when he envisaged this dream. But Netaji Subhash Chandra Bose truly said, and these words yet ring in my ears. Among the great Indian leaders, Swami Dayanand Saraswati is one of the most powerful personalities to have shaped modern India and is responsible for our moral regeneration and religious revival. May his soul rest in peace and may his dream come true someday. Thank you. आदरणीय मंचस्थ, सम्माननीय निर्णायक गण एवं सभागृह में उपस्थित मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष भ्रष्टाचार के निर्मूलन में मेरा योगदान इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि आज आपने एक ऐसे मुद्दे को कुरेदा है जिसकी आग में न केवल इस देश की आम जनता बल्कि हम नागरिक भी कहीं न कहीं झुलस रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी यह उपस्थिति अपरिहार्य कारणों से हुई है। एक ऐसा ज्वलन सवाल जो कि हमारे समाज, हम लोगों के लिए आज एक कलंक बनता जा रहा है। भ्रष्टाचार क्या है और ये कैसे होता है, ये आप सभी जानते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज यह जानने की आवश्यकता है कि आखिर वह कौन सा हल है जिसके कारण हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं। यदि आप मेरा विश्वास करें तो मैं पूरे जोश के साथ कहना चाहूँगी कि वह और कुछ नहीं, वह है हमारा स्वयं का चरित्र। जी हाँ दोस्तों, वह चरित्र जो उस राष्ट्र की एकता, स्वतंत्रता और उसकी अखंडता का प्रतीक होता है। जिस देश का बच्चा बच्चा नैतिकता का कायल हो, जिस देश का नागरिक चरित्रवान हो, आखिर किसकी मजाल है कि उस देश की ओर कोई आंख उठाकर देख ले। जरूर दोस्तों, कहते हैं भारत आज विकास कर रहा है। अरे भाई, कैसा विकास? आजादी के 64 वर्ष बाद यदि हम भारत की तस्वीर देखते हैं तो एक तरफ चमकता भारत जो 76 अरबपतियों को जन्म देता है, तो दूसरी तरफ तड़पता भारत जिसके 50% बच्चे आज भी स्कूल का मुंह नहीं देख पाए हैं। क्यों? मुझे जवाब दीजिए इसका। दोस्तों, आज हमें आवश्यकता है एकता की नीति अपनाने की, अपने पुराने विचारों को भूलकर सामाजिक और राजनीतिक हल के साथ स्वयं की जवाबदारी तय करने की। मैं यहाँ पे खुला ऐलान करती हूँ कि कोई भी कानून व्यवस्था, कोई भी सरकार, कोई भी संगठन, कोई भी समाज सेवक इस भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर पाएगा। केवल
केवल एक जागृत समाज, केवल आप जैसे जागृत नागरिक ही इसे समाप्त कर पाएंगे। दोस्तों, आज हमें आवश्यकता है एकता की नीति अपनाने की, न कि यह कि बार बार पीछे मुड़ के देखने की, अरे भाई हमारे पीछे कोई है कि नहीं, कि हम अकेले ही चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं, हमें स्वयं की नैतिकता के आधार पर एक नए भारत को जन्म देना होगा। दोस्तों, और मैं ये नहीं कहती कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं ऐसे भ्रष्टाचार को समाप्त करूंगी। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मेरे विचार और मेरी आकांक्षाओं से प्रभावित होकर यहाँ बैठे सभी लोग आज प्रण कर ले कि हाँ, हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। तो भ्रष्टाचार के निर्मूलन में मैं इसे सबसे बड़ा योगदान समझूंगी अपना, क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, कुछ नहीं कर सकती। हमारे देश की युवा पीढ़ी, वाह क्या युवा पीढ़ी, विलासिता के बंधनों में इतनी जकड़ी हुई कि अपने देश की तड़प तक नहीं पहचान पाती। आखिर क्यों? मुझे जवाब दीजिए। कहाँ गई हमारी वो तड़प? आज अपने उन्हीं दोस्तों को मैं नींद से जगाने के लिए एक त्रिसूत्री कार्यक्रम लेकर आई हूँ। मेरा वो त्रिसूत्री कार्यक्रम है, पहला शिक्षा, दूसरा चरित्र और तीसरा हमारी राष्ट्रीय एकता, अर्थात शिक्षा, चरित्र और राष्ट्रीय एकता। मैं एक विद्यार्थी हूँ और मेरी तरह इस देश में करोड़ों विद्यार्थी होंगे। अतः मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि शिक्षा के द्वारा प्राप्त भौतिक आकर्षण को त्याग दीजिए, उसके नैतिक मूल्य को समझिए। उसी से निर्माण होगा एक चरित्र का, और उस चरित्र की एकजुटता से निर्माण होगा राष्ट्रीय एकता का। वह राष्ट्रीय एकता भ्रष्टाचार को हमारे देश से मेरा दावा है कि बिल्कुल उखाड़ फेंकेगी। आज भारत 3 हिस्सों में बटा है ना, यदि यही इसी तरह भ्रष्टाचार चलता रहा तो आने वाले समय में मेरा दावा है कि यह भारत 300 हिस्सों में बटेगा। जी हाँ दोस्तों, आज भी देश के किसी कोने में, गरीबी के किसी आग में कोई ना कोई एपीजे अब्दुल कलाम जल रहा है, मर रहा है, बचाइए उसे। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे देश के 50% बच्चे आज स्कूल का मुंह क्यों नहीं देख पाते? मैं आप लोगों से इसका जवाब पूछती हूँ, दीजिए मुझे इसका जवाब। किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास जागरूकता ही नहीं है। तो हम जवाब क्या देंगे? हम निष्क्रिय हैं। कहते हैं अरे हम भारतवासी हैं, अपना कर्तव्य निभाइए। आज का हमारा योगदान कल महादान साबित हो सकता है। मैं भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कुछ नहीं बनना चाहती। मैं केवल एक जागरूक नागरिक बनना चाहती हूँ, केवल एक जागरूक नागरिक जो अपने देश को बचा सके इन भ्रष्टाचारियों से। बस अब इतना कहूँगी कि आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, गली गली में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगी, हर सन्नाटे से केवल आवाज ही आएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कहना चाहूंगी कल 15 अगस्त का दिन है, ये आपको तय करना है कि आप स्वतंत्र रहेंगे या परतंत्र। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आए हुए आर्यावर्त के सभी शिक्षकों, निर्णायकों तथा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज का मेरा विषय है श्री महर्षि दयानंद के सपनों का भारत। मानव सभ्यता के विकास क्रम को कई महानुभावों, समूहों, संगठनों, अभियानों एवं चिंतन मनन ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। श्री महर्षि दयानंद या उनके पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती ऋषि, साधकों, सुधारकों, चिंतकों ने अपने अपनी क्रियाकलापों द्वारा सभ्यता के विकास को गहराई तक प्रभावित किया है, जिससे समाज में बड़े परिवर्तन का वातावरण निर्मित हुआ है। ऐसा नहीं था कि समाज को बदलने वाले इस महापुरुष को विरोध न सहना पड़ा हो। इन्होंने प्रखर विरोध, अपमान, अवहेलना, उपेक्षा, तिरस्कार सब कुछ सहा, परंतु अपनी सदेक्षा से इन्होंने अपने समय और समाज दोनों की दिशा बदल दी, जिससे दुनिया में महर्षि दयानंद महापुरुष कहलाने के हकदार हुए, जिन्होंने अपनी सदेक्षा से अपने समय की नकारात्मक शक्तियों एवं प्रवृत्तियों को सीधी चुनौती दी। इस अवधारणा का वर्तमान संदर्भ में विश्लेषण करें तो हम अपने वर्तमान समय को समझने में कामयाब रहेंगे। आजकल कई नए आंदोलन इस भारत देश में मौजूद हैं। ये आंदोलन नकारात्मक प्रवृत्तियों के विरोध में किए जाते हैं। श्री महर्षि दयानंद की आंदोलन क्रांति व सोच के कारण ही कई बहनें शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। शिक्षा का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जिसमें महर्षि दयानंद की प्रेरणा न हो। महर्षि दयानंद के प्रादुर्भाव के पश्चात विश्व में समाजवाद, साम्यवाद, उपभोक्तावाद तथा छुआछूत, जाति भेद, अज्ञान, अविद्या,
बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, गाय पर अत्याचार आदि संकटों को दूर करते हुए नारी शूद्रो नाधीयताम वेद की इस सूक्ति को सार्थक किया। उन्होंने कोई भी मठ, मंदिर या आश्रम नहीं बनवाया। वे अपने इस देश की दीनहीन दुर्दशा को देखकर बेचैन रहते थे। जो यह भारत देश आध्यात्म, संपदा व सत्य ज्ञान से ओतप्रोत था, जगत गुरु कहलाता था। इतना ही नहीं, धन्य धान्य और वैभव के कारण यह आर्यावर्त देश सोने की चिड़िया भी कहलाता था। इस संदर्भ में किसी कवि ने कितना सुंदर कहा है, एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। हम रात को उठकर रोते हैं, हम रात को उठकर रोते हैं, जब सारा आलम सोता है, जब सारा आलम सोता है। वह महामानव देव दयानंद अपने दुख, दर्द या अभाव के लिए कभी नहीं रोए। वे जीवन भर कभी चैन की नींद नहीं सोए। ऐसा अद्वितीय इतिहास लोगों को कई वर्षों बाद प्राप्त हुआ, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि उनका अपनों या परायों किसी ने भी उचित मूल्यांकन नहीं किया। अतः हम देखें तो महाभारत के बाद जितने भी ऋषि, मुनि, साधु, संत, महात्मा हुए, उन्होंने अपने अपने ढंग से धर्म का प्रचार किया, परंतु किसी ने ईश्वर भक्ति का उपदेश नहीं दिया। श्री महर्षि दयानंद ऐसे पहले ऋषि हुए जिन्होंने ईश्वर भक्ति के साथ साथ देशभक्ति भी सिखाई। स्वतंत्रता की मांग सबसे पहले किसी ने की तो वे थे महर्षि दयानंद। तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जी का कहना था कि यदि महर्षि दयानंद हमारे इस देश में हजारों वर्ष पूर्व पैदा होते तो आज यह भारत देश पराधीनता के बंधन में ना बंधा होता। अंतिम शब्दों में यही कहना चाहूँगा कि समाज में प्रत्येक को परिश्रमी होना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रत्येक नागरिक को अपने देश के विकास के कार्य में लगे रहना चाहिए। महर्षि दयानंद इस आर्यावर्त देश को एक खुशहाल, समृद्ध व भय युक्त देश देखना चाहते थे। अंत में यही कहना चाहूँगा कि मुमकिन है गिनना बालू के जर्रे आसमां के सितारे, मुमकिन है गिनना बालू के जर्रे आसमां के सितारे, पर संभव नहीं है गिनना, पर संभव नहीं है गिनना ऋषिवर एहसान तुम्हारे, ऋषिवर एहसान तुम्हारे। धन्यवाद। मैं जहाँ जहाँ चलता गया कारवां साथ में बनता गया। आगे इस विचारों को आगे बढ़ाते हुए मैं V24 से प्रार्थना करूंगा कि अपने विचार रखें। नमस्ते। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 मार्ग ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में ईश्वर भक्ति के बताए थे। सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना तो सभी करते हैं, सभी अपने धर्म अनुसार ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, किंतु सभी की प्रार्थना का विषय एक ही होता है, ईश्वर की भक्ति। चाहे हम मंदिर में पूजा पाठ करें या मस्जिद में नमाज पढ़ें या ख्रिस्ती चर्च में जाकर प्रेयर करें, हमें सच्चे मन से प्रभु को याद करना चाहिए। हमें दुष्टता और अज्ञान का अभाव रखकर प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। संत कबीर कहते हैं, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। भगवान का स्मरण करते समय यदि माला हाथ में घूमती रहे, जीभ मुंह में घूमती रहे और मन चारों दिशाओं में भटकता रहे तो इसे स्मरण नहीं कह सकते। सही स्मरण के लिए माला की आवश्यकता ही नहीं है, जीभ का हिलना भी व्यर्थ है। केवल मन का एकाग्र होकर ईश्वर के ध्यान में तन्मय होना ही पर्याप्त है। वैसे कई लोग मानव सेवा को ही प्रभु सेवा मानते हैं। उनका मत है ईश्वर की मूर्ति को पूजने से बेहतर है कि हम उनके द्वारा निर्माण किए गए मनुष्य की सेवा करें। जिन्हें शक हो वे करें और खुदाओं की तलाश, जिन्हें शक हो वे करें और खुदाओं की तलाश। हम तो इंसान को ही धरती के खुदा मानते हैं। कई लोग अंधश्रद्धा में विश्वास रखकर इसे प्रभु का नाम देते हैं। यह अनुचित है, इसे हम प्रभु प्रेरणा नहीं कह सकते। उदाहरण, यदि चेचक के दाने शरीर पर निकले तो लोग इसे माता जी का प्रकोप समझते हैं। अब भला देवी माँ क्यों किसी का बुरा चाहेंगी? पर लोग इस बात को नहीं समझते और मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, मनौती मानते हैं। भला ईश्वर की भक्ति का यह कोई मार्ग नहीं? कई लोगों का मानना है कि गुरु की सेवा करना यानी ईश्वर की उपासना करना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस बात को स्पष्ट करता हुआ एक किस्सा भगवान श्री विष्णु से जुड़ा हुआ है। एक बार
भगवान विष्णु संदीपानी को प्रकट हुए। इस पर संदीपानी हक्के बक्के रह गए और प्रभु से पूछा कि प्रभु, आज आपने स्वयं दर्शन दिए, क्या आप मेरी किसी बात से प्रसन्न हैं या आप मुझ पर क्रोधित हो गए? कृपा कर मुझे बताइए। इस पर प्रभु ने उत्तर दिया, वत्स, मैं तुम्हारी गुरु की निष्ठा और सेवा को देख प्रसन्न हुआ और इसलिए दर्शन दिए। ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं, कफ वातादि दोषे मद भक्तो नाच माम समरे तूचे समराय हम। कई लोगों के लिए उनके माता पिता में ही ईश्वर का वास है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। श्रवण कुमार ने पूरी निष्ठा और आस्था से अपने माता पिता की सेवा की और इस प्रकार प्रभु की आराधना की। वैसे सत्य तो यह भी है कि प्रभु तो हमारे मन में बसते हैं, केवल मन को एकाग्र कर हृदय में झांकने की ज़रूरत है। संत कबीर कहते थे, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना दरगाह में, ना काबा कैलाश में। इस प्रकार प्रभु की आराधना हम किसी भी रूप में कर सकते हैं, केवल आवश्यकता है तो पवित्र हृदय और भावनाओं की। आज की युवक पीढ़ी इस पर विश्वास नहीं रखती, परंतु मेरा सबसे यही कहना है कि किसी भी हाल में उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करना न भूले। धन्यवाद। ये एक सन्यासी भी इस राष्ट्र की इतनी चिंतन और इतनी कामना करता है कि ये राष्ट्र जो है वो किस तरह से स्वदेश बने, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि विदेश की सोने की थाली में यदि मुझे खाना मिले वो मुझे मंजूर नहीं है, मुझे मंजूर है मेरे स्वदेश की मिट्टी की थाली के अंदर मैं आधी रोटी खाऊं। ये थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी और इनके ये विचार। आदरणीय निर्णायक गण तथा અત્રે ઉપસ્થિત સર્વ શ્રોતાગણને નમસ્કાર। આજનો મારો વિષય છે ભ્રષ્ટાચારને નાબૂદ કરવામાં આપણો પ્રયાસ। મિત્રો, બદલાતા જતા સમયમાં નિયમો, સિદ્ધાંતો જાણે એક ઘાસના તણખલાની જેમ તણાઈ રહ્યા છે। ગાંધીના આદર્શ ભારતમાં ભ્રષ્ટાચારનો કોઈ ઉપાય નથી। નિષ્ઠાવાન નેતાઓ વિના ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત ભારત નથી। સોનિયાજી, ગાંધી અટક ત્યાગોને, સુશીલજી ક્યારેક તો સુશીલતા દાખવોને। બોફોર્સના ભૂતો હજુ જાગી રહ્યા છે। આદર્શ સોસાયટીમાં અશોક શોક કરાવે છે। કોમનવેલ્થ ગેમ્સના ભણકારા હૈયે હજુ વાગી રહ્યા છે। સંસદમાં 300 કરોડપતિઓ બિરાજે છે, જેમની આવકમાં દર 5 વર્ષે વધારો થયા કરે છે। નેતાજી, તમને જેમણે ચૂંટ્યા તેમનો ખ્યાલ કદીક તો રાખો ને। મિત્રો, આ પંક્તિઓ દ્વારા તમને એક વાતની જાણ થઈ જ ગઈ હશે કે ભારતમાં અણુ અણુમાં ભ્રષ્ટાચાર ફેલાઈ ગયો છે।